So we are going to introduce our next speaker, Dr. Amjad Ali from Cascam BZU. Okay, Dr. Amjad Ali is serving Cascam BZU as a faculty member from 2004 with an overall 20 years of experience. And his research interests include computational fluid dynamics, scientific computing, high performance parallel computing, machine learning, and data science. He has an undergrad degree in computational mathematics from BZU and MS degree in computer software engineering from NAST and a PhD degree in mathematics from BZU. He authored a number of comprehensive textbooks also. The topic of his talk today is a roadmap to the practices for taking data science and machine learning for the mathematics students. So this he will discuss how undergrad students of mathematics can prepare themselves and build up their skills to take up career options of machine learning and data science. We welcome him to start his talk, please. Dr. Amjad, can you please share the screen? जी मैडम, परमिशन दीजिएगा मुझे। Please, sir, please, you can share your screen now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Can you hear my voice, please? Can you hear me? Yes, it is audible. Maybe I can up the volume. Okay. I am Dr. Amjad Ali, and today my talk is a roadmap to machine learning and data science practicing for mathematics student. यानी हमारे वो स्टूडेंट्स जो कि BS की अंडर ग्रेड डिग्री कर रहे हों या इवन उससे कुछ सीनियर भी हों, तो उनके लिए क्या वो पाथ फॉलो करें कि मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के एक्सपर्ट बन सकें। स्पेशली हम उनको एड्रेस करेंगे जो इस वक्त BS कर रहे हैं, वो स्टूडेंट हैं BS अंडर ग्रेड डिग्री के, और वो इस दौरान अपना क्या पैटर्न रख सकते हैं कि जब वो 4 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करें तो उसके बाद वो इस काबिल हो चुके हों कि मशीन लर्निंग एक्सपर्ट के तौर पे या डाटा साइंस एक्सपर्ट के तौर पे काम कर सकें। तो डिग्री के दौरान उनके कोर्सेज कौन से ऐसे हैं या हमने अपने नए करिकुलम में कौन से कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उन पे कुछ बात करेंगे हम। और मीनवाइल जो कुछ और टॉपिक उन्होंने को अपने रूटीन की डिग्री से हट के देखने चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। In this brief talk, first we will see कि machine learning और data science का आपस में क्या relation है। We intend to discuss a practical roadmap, especially for math students, so that when they will accomplish their degree, they are well prepared for ML and DS. I use ML for machine learning and DS for data science. We highlight key subjects and skill areas that need to be focused on. These include essential mathematics and statistics, यानी मैथ और स्टैट में से कुछ टॉपिक्स हैं और वो हमारे BS मैथ का सब हिस्सा हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वेल एस्टैब्लिश्ड लाइब्रेरीज की बात है, environments and packages and machine learning algorithms. We mention a number of useful
sources for these as well. और इन टॉपिक्स के लिए एक तो हम बात करेंगे कि हमारे बीएस के करिकुलम में क्या है, दूसरा ये कि मजीद और कौन से सोर्सेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि हम इन कोर्सेज को, इन टॉपिक्स को अपने बीएस के करिकुलम में मौजूद कोर्सेज से रिलेट करेंगे कि ये टॉपिक्स और ये स्किल्स जो कि डाटा साइंस या मशीन लर्निंग के हवाले से हैं, ये आपको हमारे बीएस प्रोग्राम में कहाँ मिलेंगे। For the topics that are not strictly available in the curriculum, we motivate the students to grab these from the internet resources. ये आप समझ सकते हैं कि आजकल चूंकि इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स का दौर आ चुका है, तो इस केस में कोई एक डिग्री भी हम उसे मुकम्मल आइसोलेट भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि ये एक डिग्री परफेक्टली कंप्लीट है। जब आप अपनी डिग्री के नॉलेज को किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन में अप्लाई करने की बात करेंगे तो मल्टीपल फील्ड्स आपको ज्वाइन करना पड़ेगी। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो बराह रास्त आपकी डिग्री का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू सी ऑन दोस टॉपिक्स। हम कोशिश करेंगे कि अपना स्पेक्ट्रम बहुत ना फैलाएं, लेकिन हम उसके अराउंड ही रहें। We emphasize that by following such a roadmap, a willing student might have a clear mindset for the targeted struggle during the progression of the degree to become a potential expert for the relevant job market, and not only for the job market, we also mean technology startups. तो ये शुरू से ही डिग्री के दौरान ही अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ जो करंट सेमेस्टर चल रहा है उसके कोर्सेज पे नजर रखनी है, बल्कि आज से 4 साल बाद का भी सोचना है, 10 साल बाद का भी सोचना है। 4 साल से मुराद जो डिग्री का टेन्योर है, उस दौरान आपका रास्ता क्या होना चाहिए उस पर भी नजर मुसलसल रहेगी, और आप उसे अपडेट भी कभी कभी करते रहेंगे, और उस चीजों की बुनियाद पे 10 साल बाद कहां खड़े होंगे कंटिन्यूअस स्ट्रगल से, तो इस पे नजर रखनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले ने जो कि बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द 5th और 6th सेमेस्टर जो उनकी ऑप्शंस या इलेक्टिव कोर्स आए, तो उन्होंने मेरे सामने 2-3 कोर्सेज का नाम रखे कि ये 2-3 कोर्सेज हैं, मुझे बताएं मैं इनमें से कौन सा चूज करूं। फलां ये कहते हैं कि इस कोर्स में ग्रेड्स अच्छे आते हैं, फलां ये कहते हैं इस कोर्स का टीचर मुश्किल है, फलां ये कहते हैं ये कोर्स ही मुश्किल है, तो मुझे फैसला करना है कि इनमें से कौन सा रखूं। मैंने कहा जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जो आपने टारगेट्स बताए हैं, सारे ही आप इसे बिल्कुल साइड पे कर दें। आप ये सोचें कि अब जो अगले 3-4 सेमेस्टर्स में आपके पास इलेक्टिव्स की स्ट्रीम्स बनेगी, आपको कौन सी स्ट्रीम सूट करती है। आप ये देखें कि इन 3 अवेलेबल ऑप्शंस में से अगर आप फलां ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन ए बी सी में से ए ऑप्शन लेते हैं, तो उसके बाद आगे चल के नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेट्स सपोज 6th में, फिर 7th में, फिर 8th में, इसके साथ स्ट्रीम जुड़ने वाले कौन से कोर्सेज आप ले सकते हैं। तो इस तरह से 3-4 जो भी स्ट्रीम्स बनती हैं आप वो आइडेंटिफाई कर लें, और उनमें से आप अपने मतलब की, अपने ज़ौक़ की या अपनी चॉइस की कोई स्ट्रीम चूज करें और उसको मुकम्मल फॉलो करें। आप ये हरगिज़ ना देखें कि इस पर्टिकुलर कोर्स में अभी क्या मुश्किल है, या अभी आसान कोर्स है, या अभी ग्रेड अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी ना सोचें, बल्कि अपनी स्ट्रीम डिसाइड करें। जो हमारे अपने स्टूडेंट भी ये फैसला करना होता है प्योर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में, और अब आने वाले दौर में वो डाटा साइंस के हवाले से और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के हवाले से भी फैसला करेंगे, अपनी स्ट्रीम्स या अपने इलेक्टिव्स चूज करेंगे। तो उनके लिए भी यही चीज है कि सिर्फ वो उस कोर्स की आसानी, उस कोर्स में आने वाले ग्रेड्स, या जो उस कोर्स को पढ़ाने वाले टीचर के अंदाज, इसको फोकस ना करें, बल्कि आज से 10 साल बाद फोकस करें कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम सूट कर रही है। व्हाट इज डेटा साइंस? शुरू में थोड़ी सी बात करूंगा कि डेटा साइंस है क्या, मशीन लर्निंग है क्या, और इससे आपस में हम कैसे रिलेट करते हैं। डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइंस डोमेन एक्सपर्टीज, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स। किस काम के लिए? टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल नॉलेज एंड इंसाइट्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और मजीद क्या है इसमें, बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अप्लाई द एक्सट्रैक्टेड नॉलेज एंड एक्शनेबल इंसाइट्स टू द एप्लीकेशन डोमेन फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या कुछ भी हो। तो ये मैंने 4 टुकड़े कर दिए हैं एक डेफिनेशन के। ऑब्वियसली आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, आप डिफरेंट सोर्सेज से बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस ले सकते हैं, लेकिन आपको उनमें ये 3-4 कंपोनेंट नजर आएंगे। पहली क्या चीज है, डेटा साइंस इज नॉट एन स्टैंड अलोन फील्ड। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है।
उसमें आप मैथ स्टैट से स्पेसिफिक नॉलेज लेते हैं, जिस डोमेन में अप्लाई करना है, जिसका डेटा आपके पास होना चाहिए, उस डोमेन की बात, उसकी एक्सपर्टीज मैटर करेंगी। प्रोग्रामिंग स्किल्स, लाइब्रेरीज और डिप्लॉयमेंट पैकेजेस वगैरह ये मैटर करेंगे। और उसके बाद इस सारे काम से करना क्या आपने के उसके बाद आपने उस नॉलेज, उस डेटा में से मीनिंगफुल नॉलेज या इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करनी है। और उसके बाद उस एक्सट्रैक्टेड नॉलेज की बुनियाद पर एप्लीकेशन डोमेन में डिसीजन मेकिंग की बात भी शामिल होगी। यानी सिर्फ यूं समझ लीजिए कि जो डिसीजन मेकिंग का आखिरी फेज है, अब जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, अब जो एक्सपर्टीज लेवल डेवलप हो रहे हैं, अब जो कंपनीज सॉल्यूशन मांगती हैं, वो डिसीजन लेवल भी ऑटोमेटिक मांगती हैं। व्हाट इज अ डेटा साइंटिस्ट? ऑब्वियसली आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज से इसकी काफी वर्सटाइल किस्म की डेफिनेशन मिलेंगी। ये मेरे पास ये SAS, जिस तरह सैप एक ERP है, इस तरह से SaaS एक बिजनेस एनालिटिक्स का सॉफ्टवेयर है, ऑब्वियसली कमर्शियल कंपनी है। वो कहते हैं कि डेटा साइंटिस्ट आर अ न्यू ब्रीड ऑफ एनालिटिकल डेटा एक्सपर्ट्स who have the technical skills to solve complex problems and the curiosity to explore what problems need to be solved। और वो उस लिहाज से किसी हद तक मैथमेटिशियंस हैं, किसी हद तक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, एंड पार्ट ट्रेंड स्पॉटर्स, और वो ट्रेंड भी चेक कर सकें इस वक्त जॉब मार्केट का, या जो इस वक्त एप्लीकेशन डोमेन्स हैं डेटा साइंस के हवाले से उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो उसे स्पॉट कर सकें। एंड बिकॉज दे स्ट्रेडल बोथ द बिजनेस एंड IT वर्ल्ड, कम से कम दो वो दुनियाओं पे कदम रख रहे होते हैं, एक IT वर्ल्ड पे और एक बिजनेस पे, लिहाजा दे आर हाईली sought आफ्टर एंड वेल पेड। They are highly sought after and well paid। यानी हमारे स्टूडेंट, बात पर ये चीज देखी गई है कि हमारा स्टूडेंट एक माइंडसेट बना लेता है। जो मैथ में कदम रखता है वो कहता है ये मैथ एक पाइप है, एक टनल है, बस अब मेरा दुनिया से ताल्लुक कट गया, मैं मैथ की टनल में हूँ। जो फिजिक्स में जाता है वो कहता है मैं फिजिक्स की टनल में हूँ। तीसरा जो है CS में या IT में जाता है वो कहता है मेरी एक मखसूस टनल है, जबकि दुनिया वैसे काम नहीं कर रही। पहले बात हो चुकी है कि चीजें इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुकी हैं, तो लिहाजा आपको एक वक्त में ज्यादा पे नजर रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली एक आपकी जो मेन स्टैंडिंग बनती है, लेकिन आपको बाकी चीजों पे भी नजर रखनी पड़ती है। अगर आप अप्लाइड नॉलेज की बात करें को, अगर एक टनल में ही देखना जानता है, वो कहता है मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड की बात करें, इससे ना हटें, तो वो चाहे उस फील्ड में जितना आगे भी चला जाए वो बहुतों की डिमांड नहीं बन सकता। इसके मुकाबले में ऐसा जो कि मल्टीपल फील्ड्स को साथ लेके चल सकता है और उसमें स्लाइड डेवलप हो चुकी है, तो ऑब्वियसली ही विल क्रिएट द डिफरेंस, शी विल मेक द डिफरेंस। Difference actually learning is an application of artificial intelligence that provides systems the ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed। आज मैं चंद इस पे जुमले बोलना चाहूंगा इस डेफिनेशन पे, जो भी आप मशीन लर्निंग की यहाँ वहां से पढ़ते हैं, इवन जो हमारे पास सीनियर स्टूडेंट्स जो कि काफी साल पहले प्रोग्रामिंग सीख भी चुके होते हैं और बाज़ औक़ात BS भी कर चुके हैं, चंद एक MPhil भी उनमें से कर चुके होते हैं, मशीन लर्निंग से कुछ ना कुछ तारुफ होता भी है, लेकिन वो एग्जैक्टली बाज़ बातों का डीपली मतलब नहीं समझते। जो बारीक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका देखें, मैं आपको बात एग्जांपल समझाता हूँ कि मशीन लर्निंग है क्या। फर्ज कर लें कि आपको टास्क दी गई है कि आपको प्लाट का साइज बताया जाएगा, लोकेशन बताएंगे कि फलां कॉलोनी में है, सिटी के सेंटर से उसका इतना फासला है, कुछ और बातें बता देंगे जैसे अब वो कॉलोनी डेवलप्ड है या नहीं, वो प्लाट कॉर्नर का है या नहीं, पार्क फेसिंग है या नहीं, 40 फुट रोड पे है या 100 फुट रोड पे, इस तरह कुछ पैरामीटर प्लाट के हवाले से बताए जाएंगे। और आपसे कहा जाए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कैन यू टेल द प्राइस ऑफ ए प्लाट using some formula in which you put the given parameter values and get the price। क्या आपके पास ऐसा कोई फार्मूला मौजूद है कि आप उस फार्मूले में ये वाली वैल्यूज यानी साइज हो गया, लोकेशन हो गई, पार्क फेसिंग है या नहीं, कॉर्नर प्लॉट है या नहीं, आप ये वाली इंफॉर्मेशन उस फार्मूले में पुट करें और आपके पास जवाब आ जाए कि इस प्लॉट की इतनी प्राइस है। क्या कोई आपके पास ऐसा साउंड एनालिटिकल मैथमेटिकल फार्मूला मौजूद है? ऐसे और बेतहाशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली इसका जवाब बनता है नो, नो सच एनालिटिकल फार्मूला एग्जिस्ट्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग से क्या मुराद है, आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग कोर्स किया, उसमें बहुत सिंपल प्रोग्राम बनाया टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का स्पेसिफिक एक एक्सप्लिसिट फार्मूला है कि एक इनपुट आएगी लेंथ की, दूसरी इनपुट आएगी विड्थ की, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगी वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है। आपने न्यूटन मेथड या बाइसेक्शन मेथड का आपने कोड लिखा, मेथड पढ़ा आपने, उसमें स्पेसिफिक इनपुट आएगी, फार्मूला यूज होगा और उसके बाद उस स्पेसिफिक फार्मूले के मुताबिक आउटपुट्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इन सब के लिए स्पेसिफिक फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला मौजूद है, खाओ अप्रोक्सीमेशन वाला हो, खाओ एनालिटिकल हो, लेकिन बहरहाल वो एक मैथमेटिकल जो है वो उसमें एक एक्सप्लिसिट सेंस मौजूद है, इस लिहाज से कि वो फार्मूला उसी स्पेसिफिक काम के लिए बना हुआ है। अच्छा, अब ऐसे कामों के लिए जब आपके पास इस तरह की डिमांड आ जाए और ये कहा जाए कि इसके लिए प्रोग्राम लिखें, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो यहाँ पे मशीन लर्निंग आती है, जो कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग से हट के है, जो कि उन कामों के लिए जिसके लिए एक्सप्लिसिट फार्मूला या स्पेसिफिक मैथमेटिकल मेथड उस काम को करने के लिए मौजूद नहीं है, तो वहां पे मशीन लर्निंग का रोल आ जाएगा। अब मशीन लर्निंग क्या है? इसमें हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करेंगे मशीन लर्निंग में जिस प्रोग्राम को डेटा दिया जाएगा। अब डेटा से क्या मुराद है? डेटा से मुराद यह है कि माजी में होने वाले प्लाटों के सौदों का रिकॉर्ड दिया जाएगा, यानी बताया जाएगा देखो भाई फलां साइज का प्लाट फलां कॉलोनी में था, वो फलां उसकी लोकेशन थी, फलां वो पार्क फेसिंग था नहीं था, कॉर्नर था नहीं था, उसकी इतनी प्राइस थी, एक्चुअल में इतने का सोल्ड हुआ या परचेज किया गया, एक रिकॉर्ड आ गया। इसने किसी और प्लाट के बारे में, किसी और प्लाट के बारे में, किसी और प्लाट के बारे में, यूं काफी सारे प्लाट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई। ये पॉइंट समझे जरा कि डेटा क्या चीज है, कि माजी में होने वाले इस तरह के इन्हीं पैरामीटर की बुनियाद, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू में सोल्ड आउट हुए प्लाट्स, उनकी प्राइस जो एक्चुअल थी वो हमें मालूम हो चुकी है कि हाँ वो एक्चुअली इतने में सोल्ड हुआ था, और उन प्लाट्स के ये फीचर्स थे, फीचर्स कह लें, एट्रीब्यूट्स कह लें, पैरामीटर वैल्यूज कह लें, उनकी ये वाली वैल्यूज थी। अब हम कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जो इस डेटा को देखते हुए, इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए पैटर्न एक डेवलप करें, उसमें से पैटर्न एक्सट्रैक्ट करें। ऑब्वियसली वो डील करेगा मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के साथ, स्टैटिस्टिकल जो है वो टेक्निक के साथ, कोई एल्गोरिथम बैकग्राउंड में वर्क कर रहा होगा, उसकी बुनियाद पे वो एक्सट्रैक्ट करेगा उसमें से इंफॉर्मेशन और पैटर्न, और फिर वो डिसाइड करेगा हाँ अब मुझे लेट सपोज लर्निंग हो चुकी है, मेरी सेंस डेवलप हो चुकी है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को लें, उसके सामने भी रिकॉर्ड रखें, तो अगर आप खुद भी पर्सनली ऐसा कोई रिकॉर्ड स्टडी कर लें कुछ देर कि फलां साइज का प्लाट फलां लोकेशन पे, फलां साइज का प्लाट फलां लोकेशन पे, तो अभी भी आप जानते हैं कि जो है अगर आपको थोड़ी सी ऐसी मालूमात हैं तो आप गैस कर लेते हैं कि शहर के फलां एरिया में इतने साइज का प्लाट, इतनी लोकेशन का इतने का होना चाहिए लगभग, तो आप एक गैस कर लेते हैं। स्टिल यहाँ देखें जो आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, वो ब्रेन बगैर बताए गैर महसूस अंदाज में पैटर्न उसमें से इकट्ठे कर रहा होता है। अब हम चाहते हैं ये वाला काम हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम करें, दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। कि मशीन लर्निंग में वो डाटा लेकर, पुराना रिकॉर्ड लेकर पैटर्न्स को जज करेगा आपका प्रोग्राम, और एक मॉडल डेवलप कर लेगा, एक फार्मूला डेवलप कर लेगा, जो कि एग्जैक्टली उस काम के लिए तो नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ डाटा का पैटर्न देखते हुए उसमें से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है। अच्छा, अब उसका फायदा क्या उस मॉडल का? इसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट कोई प्लॉट सामने आता है, उसका साइज भी है, उसका मखसूस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, जितने पैरामीटर्स हैं, इन सब पैरामीटर्स की कोई ना कोई उसकी वैल्यूज मौजूद हैं। अब हम अपने प्रोग्राम के हवाले वो इनपुट करेंगे, वो एट्रीब्यूट्स, वो फीचर वैल्यूज उसे देंगे, तो हमारा प्रोग्राम जो मशीन लर्निंग मॉडल बन चुका है वो एग्जीक्यूट होके हमें एक सजेस्ट करेगा प्राइस। तो अगर वो अच्छा मॉडल है तो वो रियलिस्टिक के करीब होना चाहिए, जैसा माजी में होता रहा है उस पैटर्न के मुताबिक देगा, और अगर वो मॉडल कमजोर है तो उसमें एक्यूरेसी में फर्क आ जाएगा। लेकिन बहरहाल मशीन लर्निंग ये है कि उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए एक पैटर्न फार्मूला बना लेना, फिर आने वाले एग्जांपल्स के लिए काम करते रहना। फिर अगली चीज ये भी है कि जब वो काम होता चला जाएगा तो उसका डेटाबेस बढ़ेगा, तो इस तरह से प्रोग्राम की लर्निंग बढ़ेगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने ये वाला काम जो जिसकी मैंने मिसाल दी है, काम या कोई भी इससे मिलता जुलता काम है, आप जॉब मार्केट में करने गए हैं, एक शख्स उसका 6 महीने एक्सपीरियंस है, आपने काम किया, आपका 2 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप सेंसेबल वे में काम करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी प्राइस गैस कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी, ये भी वक्त के साथ डाटा के साइज की बुनियाद पर ये भी ग्रो करते हैं, इनकी लर्निंग या इंटेलिजेंस लेवल भी इनका बढ़ता है।
अच्छा, ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली डेटा साइंस के में जो काम करना है हमने, उसमें 3-4 पिलर्स कह लें कि इन्वॉल्व हैं, और एक जो उसके टेक्निकल साइड है जहां से मेथड मिला, वो मशीन लर्निंग साइड है। यानी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेटा साइंस इज मशीन लर्निंग। आज के दौर में मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स जो कि डेटा साइंटिस्ट यूज करेंगे। ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के सर्कल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ये दोनों ऑब्वियसली एक अगरचे डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन बहरहाल इनका बहुत सारा एरिया कॉमन भी है। मशीन लर्निंग का बहुत सारा काम है ही डेटा साइंस के लिए, और डेटा साइंस में जो डेटा साइंटिस्ट ने जो भी एक्टिविटीज करनी है उसमें एक बड़ा हिस्सा मशीन लर्निंग टेक्निक्स वाला होगा। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, चूंकि जो इनका बहुत बड़ा एरिया दोनों में कॉमन है, दोनों डोमेन्स में, डेटा साइंटिस्ट की हो या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की हो, तो हम इसको स्टार्ट में चूंकि हम एक बड़ा हिस्सा इनका इकट्ठा ले सकते हैं, और चूंकि हम मैथ की विंडो से आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम जिस एरिया में एंटर होंगे वो ये डीएस और एमएल का कॉमन एरिया होगा। पॉइंट समझे जरा कि बेसिकली हम मैथमेटिशियंस हैं, तो अब हम जो ये कॉमन एरिया है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस सर्कल्स का, हमारी एंट्री यहाँ पे होगी। तो लिहाजा हम इन टेक्निक्स में जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक डेटा साइंटिस्ट को यूज करनी चाहिए, या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मैथमेटिशियन को, या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बनने के लिए मैथमेटिशियन को करनी चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हम वो देखने हैं, स्टैट के देखने हैं, एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ये स्टडी करने होंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लर्न करनी है, इसमें आर की एग्जांपल है, पाइथन भी है, और भी टूल्स हो सकते हैं, लेकिन पाइथन एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी और मशीन लर्निंग वाली एप्लीकेशन के लिए भी बहुत आसानी से यूज हो सकती है। पाइथन लाइब्रेरीज बहुत अवेलेबल है मशीन लर्निंग के हवाले से, डेटा साइंस के हवाले से, तो वो हमें सूट करता है। लर्न अबाउट बिग डेटा एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, ये एडवांस चीज हो जाएगी। लर्न डिप्लॉयमेंट, कि हमने जो काम कर लिए हैं, मॉडल बना लिए हैं, उससे अगर हमने डिप्लॉय करना हो तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर हम इस सारे प्रोसेस का माइलस्टोन व्यू देखना चाहें, तो नंबर 1 पे हम रख सकते हैं मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स को, नंबर 2 पे प्रोग्रामिंग की हमें ग्रिप आनी चाहिए, नंबर 3 मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की सेंस हो, और आखिर में हम साथ कुछ जो फर्दर एडवांस टूल्स हैं और या डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं उनको यूज करने की बात करते हैं। बट दिस माइलस्टोन व्यू इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर स्टेप करेंगे, फिर नंबर 2 करेंगे, नंबर 3 करेंगे, नंबर 4 करेंगे। ये कोई नेसेसरी आपके लिए कोई रोड मैप नहीं है इस तरह का। ये माइलस्टोन्स आपने ऐसे अचीव नहीं करने के, पहले मैथ कवर होगी तो ही आपको प्रोग्रामिंग पे जाएंगे, प्रोग्रामिंग कवर होगी तो ही डीप लर्निंग पे, मशीन लर्निंग पे जाएंगे। जब ये सारे काम हो चुके होंगे तब चौथी बात पे जा सकते हैं। नहीं, हम इनमें पैरेलल भी वर्क कर सकते हैं। तो आप इस तरह का एक और व्यू भी देख सकते हैं। अगर से यहाँ पे स्टिल नंबरिंग नजर आ रही है आपको, लेकिन ये आपकी आसानी के हिसाब से की गई है कि जो एक बीएस मैथ का स्टूडेंट है या इस तरह की कोई अंडरग्रेड डिग्री का स्टूडेंट है, वो चीजों को कैसे व्यू करना शुरू करे। तो नेचुरल जो एक बनता है ये 1 2 3 4 पे इस तरह से बनता है, बट स्टिल आपको चीजें इन पैरेलल भी चलानी पड़ती हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप चीजों को नंबर वाइज ही चलाएंगे अपनी सहूलत से, बल्कि स्टिल आप एक चीज को ज्यादा फोकस कर लेते हैं और दूसरे को लो प्रायोरिटी पे रख लेते हैं। फिर लेट सपोज आपने नंबर 1 काफी कवर कर लिया रीजनेबली, फिर आप 2 और 3 इकट्ठे शुरू कर सकते हैं, 3 और 4 इकट्ठे शुरू कर सकते हैं उसके बाद। तो इस तरह से एक आप अपनी सूटेबिलिटी के एतबार से एक पैटर्न, एक तरतीब, एक प्रायोरिटी सेटअप बना सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या लर्न करना है जी? सबसे पहले लॉजिक की बात है। इसके लिए बीएस में एक डिस्क्रीट मैथ कोर्स होता है जिसमें हम लॉजिक पढ़ाई जाती है। लॉजिक समझना क्यों जरूरी है? आपने कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, उसकी बैकग्राउंड में लॉजिक वर्क कर रही होती है। अगरचे बात आप ये टॉपिक शायद नाम लेके ना भी पढ़ें लॉजिक का वर्ड यूज करके, लेकिन आपका माइंड लॉजिकल थिंकिंग की तरफ जा रहा होता है। बेसिक कैलकुलस, स्पेशली डेरिवेटिव्स विद फिजिकल इंटरप्रिटेशंस, इट्स पार्ट ऑफ द बीएस मैथ कोर्स कैलकुलस 1। ऑब्वियसली ये नए करिकुलम में भी है और काफी पहले से भी एस्टैब्लिश्ड कोर्स है। लीनियर अलजबरा जो मशीन लर्निंग की एक्टिविटी है, जो पैटर्न जज करने और मॉडल डेवलप करना है, उसमें ये लीनियर अलजबरा का बहुत रोल रहेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्यूनिंग ऑफ एमएल मॉडल्स विद मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी। हम बीएस मैथ में इसके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं। अगर आपने कम वक्त में सीखना है, कुछ रिवीजन करनी है, तो मैंने यहाँ पे ये लिंक शेयर कर दिया है पीडीएफ फाइल का। तो एक इसमें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मौजूद है जिसमें आप नेसेसरी लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं।
Optimization and gradient descent. It is part of BS Math courses. Class 3 में multivariate calculus है, optimization है, इनमें topics आ जाते हैं. कुछ resources इंटरनेट के भी हैं, मैंने कुछ मेंशन किए हैं जो कि जरा सिंपल से हैं. इसके बाद है plotting of simple function in Excel itself. General math courses in BS Math, DS1 and DS2 in Excel. इंटरेस्टिंगली हमारा जो नया करिकुलम है इसमें हमने 2 कोर्सेज जनरल मैथ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं. एक का नाम है डेटा साइंस 1 और दूसरा है डेटा साइंस 2. दोनों के साथ एक्सेल में फुल टाइम प्रैक्टिकल चल रहे होंगे. अगर से जो यहाँ टारगेट लिखा हुआ है वो सिर्फ सिंपल फंक्शंस प्लॉट करने का है, बट स्टिल इन DS1 और DS2 वाले कोर्सेज में आप काफी ज्यादा कुछ पढ़ रहे होंगे एक्सेल में काम करने का, और आप नोट करेंगे कि एक्सेल में आप कितने शानदार तरीके से बड़ी आसानी के साथ डाटा हैंडल कर सकते हैं. हम अपने नए BS में आने वालों को आराम तसल्ली से, मतलब जब पूरा कोर्स मिल जाता है आपको, एक लेट्स सपोज सेमेस्टर 1 में मिल गया, एक 2 में मिल गया, DS1 DS2, तो ये हम एक्सेल में उन्हें बहुत कुछ हमारा स्टूडेंट के पास अपॉर्चुनिटी के उन्हें सिखाया जा सके. A comprehensive resource book, एक बुक है मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग. यानी जो BS कर भी चुके हैं, जो एमफिल लेवल पे हैं, अगर वो सारी मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं जो कि मशीन लर्निंग में फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो ये किताब है, लिंक दिया गया इसका, मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग. काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. अभी जो मैथ के टॉपिक और कुछ स्टैट्स के टॉपिक बात करने वाला हूं वो सारे इस बुक में मौजूद हैं. हमें बेसिक कंसेप्ट चाहिए स्टैट के. कौन से अभी मैं लिस्ट आउट करता हूं. ये लिस्ट काफी लंबी चौड़ी आगे इसकी, खैर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तो नहीं है, जो छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स मैंने सारे मेंशन किए हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको. इसके अलावा एक और चीज ऐड कर लें, टाइम सीरीज एनालिसिस का. तो इनके लिए आपको जो BS में भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं, रेलिवेंट मटेरियल भी आप देख सकते हैं सिलेक्टेड किस्म का. अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये मैंने सामने आपके स्क्रीनशॉट रखा है सिम्बो लैब, जो कि एक ऑनलाइन मैथ कैलकुलेटर है. इनकी साइट पर आके जब मैं क्लिक करता हूं स्टैट पे, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेटर, तो मेरे सामने ये कुछ 15 डेफिनेशंस आ गई हैं. अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, मिनिमम, मैक्सिमम, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, प्रोबेबिलिटी. तो आप देख सकते हैं कि ये समझ लें यही वो टर्म्स हैं जो कि आप स्टैट से गुजरते हुए फौरी पिक करेंगे डाटा साइंस के लिए एट एन इनिशियल स्टेज. तो ये वो टर्म आपको हेल्प आउट कर सकती है. ये मैंने जस्ट दिखाना चाहा है कि एक जो स्टैट कैलकुलेटर भी है ऑनलाइन, वो भी इन्हीं की बात कर रहा है. These set topics along with various other topics are part of BS Math courses, especially Stat 1 आपको पढ़ाई जाती है. इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा साइंस, ये भी हमने अपने नए करिकुलम में एक डेडिकेटेड कोर्स रखा है. तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट ये 2 कोर्स अच्छे तरीके से पढ़ लेता है तो उसके पास स्टैट में से काफी कुछ आ चुका है जो कि वो एज ए मशीन लर्निंग एक्सपर्ट या एज ए डेटा साइंस एक्सपर्ट यूज कर सकता है. ये कुछ बुक्स मेंशन कर दी गई हैं जो कि इंजीनियर्स के लिए और साइंटिस्ट के लिए यूजफुल हैं. बेसिक जो स्टैट हर एक को किसी भी डेटा साइंटिस्ट को या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट को चाहिए हो सकती है, वो इसमें गिवन है. एक और ये एक्सीलेंट रिसोर्स है, स्टैटिस्टिक्स रिवीजन नोट्स बाय मैथ बॉक्स, लिंक दिया है, यहाँ से ले सकते हैं. ऑब्वियसली ये कंसाइज होगा काफी. अच्छा, अगर हम नजर दौड़ाएं तो हमारे BS के करिकुलम में ये वो कोर्सेज हैं सेमेस्टर 1, 2, 3, उसके बाद 4 में, 6 में, 7 में, 8 में, जिसमें मैथ और स्टैट के वो वाले कोर्सेज हैं जो कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के हवाले से बहुत यूजफुल हैं. इसके बाद प्रोग्रामिंग की बात आएगी, जो दूसरा फेज था. Python offers an excellent programming platform both for basic programming and DS data science machine learning libraries. क्यों? It is popular, easy to learn, future ready, बहुत featureful है और बहुत ज्यादा कम्युनिटी यूज कर रही है. इसका मतलब यह है कि आपको रेलिवेंट मटेरियल बहुत सारा इजीली मिल जाता है. फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं इसके. इसके अलावा जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए लाइब्रेरीज हैं, सच एज scikit-learn है, टेंसरफ्लो है, केरास है, ये सारे आपको पाइथन में बिल्ट इन बने बनाए मॉडल्स मिल जाते हैं. पाइथन ऑफर्स पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइक Django, Flask फॉर बैकएंड डेवलपमेंट, Thinker फॉर GUI डेवलपमेंट, Pygames फॉर गेम डेवलपमेंट. मींस है कि पाइथन में और बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज पाइथन की अवेलेबल हैं जो कि आप रेडिली यूज कर सकते हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ कामों के लिए. तो लिहाजा ये आप स्टार्ट इसका बहुत अच्छा ले सकते हैं. इसके अलावा NumPy, Pandas, Matplotlib, इनके पर्पसेस लिखे हैं सामने, तो ये भी पाइथन में अवेलेबल हैं.
Vast variety of books and online training courses, videos are available. हमारे पास BS में क्या है कि हमने सेमेस्टर 1, 2, 3 में 3 कोर्स ऑफर कर देते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस, और उसके बाद पाइथन का हमने कोर्स स्पेशली इस साल के लिए नए सालों के लिए हमने नए करिकुलम में ऐड कर दिया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद पाइथन। इसके बाद जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं लाइक कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम है, मैटलैब्स में शामिल हो जाता है, और मैथमेटिका है, मैपल है, और भी कुछ नाम शामिल हो सकते हैं। तो इनमें इन पैकेजेस में ना सिर्फ ये कि आप मैथमेटिक्स के बेसिक आप सीख जाते हैं, बल्कि आगे चल के ये सॉफ्टवेयर्स आपको मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए भी लाइब्रेरीज या पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स को मौका प्रोवाइड करते हैं कि जब वो आगे चल के अगले सेमेस्टर्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस या लीनियर अलजेब्रा कोर्सेज करें, तो साथ के साथ वो मेथड्स की प्रोग्रामिंग भी करें और एप्लीकेशंस को भी प्रोग्राम करें। नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप कह लें आप इसे, लर्न एंड एग्जीक्यूट कोर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। आपने लर्न करना है कि मशीन लर्निंग है क्या, और उसके जो बेसिक जो उसका एक्सपोजर है रेग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए और क्लस्टरिंग वाले प्रॉब्लम्स के लिए जो इनके मेथड्स मौजूद हैं, आपको उनका तारुफ होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कौन सी है, सुपरवाइज्ड है, सेमी सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, तो ये टाइप्स का तारुफ हो जाए। इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग विद न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, इन सारे कामों के लिए एक एक्सीलेंट सोर्स बताया जा रहा है आपको कि आपने sklearn या टेंसरफ्लो लर्न करना है, तो ये एक बुक है। अब खास बात तरफ आए जरा, वो ये है कि बल्कि इनफैक्ट थोड़ी देर आपको मैं चंद स्लाइड्स के बाद बताऊंगा कि ये जो आपको बताई गई चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने अपने BS मैथमेटिक्स न्यू करिकुलम में ऐड कर दी हैं। हमने मशीन लर्निंग 1, 2, 3 के नाम से 3 कोर्सेज रखे हैं, और जिन सेमेस्टर्स में आएंगे मैं आगे जिक्र करता हूं उसका। तो ये वाले कोर्सेज हमारे स्टूडेंट को मशीन लर्निंग के लिए और डेटा साइंस के लिए पोटेंशियल एक्सपर्ट बनाने के काबिल हैं। कुछ और सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने खुद से स्टडी करनी है ड्यूरिंग BS या इवन आफ्टर BS, तो ये कुछ कोर्सेज मेंशन है। गूगल्स का अपना एक फ्री क्रैश कोर्स है मशीन लर्निंग के लिए, डेटा साइंस फ्रॉम कैगल, इसके मुताबिक कोर्सेज हैं। कोर्सेरा या फिर यूडेमी पे जाएं अगर आप इनकी साइट्स पे, तो वहां भी बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन ये गूगल वाली ऑप्शन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इसके अलावा कोर्सेरा पे गाइडेड प्रोजेक्ट्स हैं अर्ली लर्नर्स के लिए। कोड विद हैरी, तो इन साहब के यूट्यूब चैनल पे भी काफी कुछ सपोर्ट मौजूद है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, पाइथन के हवाले से। madewithml.com, मशीन लर्निंग से मतलब ML स्टैंड फॉर दैट, तो ये भी काफी यूजफुल साइट है। ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, स्टार्टिंग स्क्रीन, मशीन लर्निंग क्रैश कोर्स फ्रॉम गूगल, और उसके बाद कैगल, और ये गाइडेड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम कोर्सेरा। तो आप देख सकते हैं जो पहले 2 ही आ रहे हैं वो मीडियम इंटरमीडिएट लेवल के, COVID-19 डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, सेंटिमेंट एनालिसिस विद डीप लर्निंग यूजिंग BERT। तो इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स और भी काफी सारे इसमें मौजूद हैं। देखिए, शोइंग 975 टोटल रिजल्ट्स फॉर गाइडेड प्रोजेक्ट्स। मैंने ये लेवल स्कॉलमेंट सेट किया था, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल सेट नहीं किया, स्टिल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। नेक्स्ट एक और चीज है कि जिसको मैं चौथा पिलर करार दे रहा हूं इस डिस्कशन में, वो है हाउ टू डिप्लॉय एन ML मॉडल। डिप्लॉय कैसे करना है, ये आप समझ लें, ये BS मैथ का ऑब्वियसली डायरेक्टली हिस्सा नहीं होगा। ये आपको साइड बाय साइड एंडिंग सेमेस्टर्स में ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स आपको चीजें देखनी पड़ेंगी कि जो आप मॉडल बना रहे हैं डिप्लॉय कैसे किया जाए। या आपने मैटप्लॉटलिब, जिसका पहले जिक्र आ चुका है, उसका इस्तेमाल सीख लिया है, सीबॉर्न लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल की विजुअलाइजेशन करने चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और टूल्स भी आपको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ टूल्स का जिक्र है जिसका ताल्लुक डिप्लॉयमेंट से है या एडवांस्ड विजुअलाइजेशन से है। एक छोटी सी चीज और भी साथ रख लें, वो ये कि सारा काम क्या पता आपको विंडोज में बैठ के ना करना पड़े। लाइनक्स एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, ऑब्वियसली काफी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, लेकिन उसका इस्तेमाल अब आके इन सालों में इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं रह गया जितना कि एक तस्वुर किया जाता था।
इसका फ्रंट एंड और जो GUI है, यूजर इंटरफेस है, ये बहुत यूजर फ्रेंडली हो चुका है। और वैसे भी आपने सिलेक्टेड कमांड्स सीखनी होती है, ना कि आपने लिनक्स का बहुत डीप एक्सपर्ट बनना है। तो लिहाजा आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर विंडोज भी इंस्टॉल होनी चाहिए और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी इंस्टॉल होनी चाहिए। आपको लिनक्स में बहुत ज्यादा टूल्स और जो है पैकेजेस वगैरह फ्री में मिल जाते हैं और उन्हें गाइड करने वाली कम्युनिटी भी मिल जाती है। ये कुछ मैंने सोर्सेज मेंशन किए हैं, आपको वीडियो भी इंशाल्लाह ये मिल जाएगी और इसका जो PDF फाइल वगैरह वो भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो आप इसमें से सोर्सेज देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट करें, जब आप इस फील्ड में आ चुके हैं तो आपने ये भी जज करना है कि दीगर लोग इसमें क्या कर रहे हैं, दुनिया इसमें क्या कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ये है, कीप योर आई ऑन दिस वेबसाइट पेपर विद कोड। इस पे वो पेपर्स शाया किए जाते हैं जिनमें साथ कोड भी अवेलेबल है। GitHub जिसपे कोड्स की बहुत बड़ी रेपोजिटरीज होती हैं, उसमें चेक करते हैं ट्रेंडिंग रेपोजिटरीज कौन सी हैं। और GitHub का तारुफ या लिनक्स तारुफ ये कोड विद हैरी पे सिंगल वीडियो में भी मौजूद है। इसके अलावा ये जो सोर्सेज है लाइक दिस वन, इकोनॉमिक टाइम्स है, इसमें आप ये एनालिटिक्स और डेटा साइंस के हवाले जो लेटेस्ट स्टोरीज चल रही हैं, ट्रेंड सेटिंग है, इससे आगाह रहें ताकि आपको अंदाजा हो कि इस फील्ड में चीजें किस क्या रुख अख्तियार कर रही हैं। ध्यान में रखेंगे ये वाली चीजें, इनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा है और टेक्नोलॉजी बेस करती है इंजीनियरिंग लेयर के ऊपर और इंजीनियरिंग लेयर बेस करती है साइंस लेयर के ऊपर। साइंस नीचे है फाउंडेशन में, ऊपर इंजीनियरिंग की लेयर है, ऊपर टेक्नोलॉजी की लेयर है। टेक्नोलॉजी की लेयर बहुत जल्दी चेंज होती है तो आपको उस पर नजर रखनी पड़ती है। और ये जो एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिक्स की, स्टैट की, प्रोग्रामिंग की, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी लेवल के ऊपर हैं। तो इसमें पैटर्न्स और सेटिंग्स और एप्लीकेशंस, ट्रेंड्स कुछ ना कुछ वक्त के साथ बदलते रहते हैं। ऑब्वियसली आप इन पर नजर रखेंगे तो यह आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी होगा, सिर्फ आगाही के लिए नहीं बल्कि अपने आप को एक मोटिवेट करने के लिए भी। Sir, I'm sorry to interrupt you, but we have to wind up. We already are 7 minutes late. जी, मैं इसमें कोशिश करता हूँ विदिन 5 मिनट्स में ऐसे समेट दूं। ML डेटा साइंस स्ट्रीम इन मॉडर्न BS मैथ्स। हमने जो एक मॉडर्न करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया है BS मैथमेटिक्स का, हमने कहाँ कुछ रखा है इसमें। जैसा मैंने बताया कि सेमेस्टर 1 में डेटा एनालिसिस 1 है, डेटा एनालिसिस 2 है एक्सेल के साथ, सेमेस्टर 3 में फंडामेंटल्स ऑफ डेटा रैंगलिंग, सेमेस्टर 4 और 6 में मशीन लर्निंग 1 और मशीन लर्निंग 2 का कोर्स है। सेमेस्टर 7 में आते हैं तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग विद अनसर्टेनिटी कोर्स पॉसिबल है या फजी सेट थियरी का। अगर आपने सेमेस्टर 6 में मशीन लर्निंग 2 नहीं लिया तो आप यहाँ भी ले सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। इसके अलावा सेमेस्टर 7 और 8 जो हमारे स्टूडेंट का फाइनल ईयर होता है, अब आप देख सकते हैं कि फाइनल ईयर में सेमेस्टर 7 में 3 कोर्स और सेमेस्टर 8 में 3 कोर्स रखने होते हैं हमारे स्टूडेंट इलेक्टिव्स, जिनके जो मैंने पहले जिक्र किया उनके अलावा। तो अब यहाँ नोट करें कि हमारे पास 6 कोर्सेज हमने इंट्रोड्यूस करवाए बहुत बहुत कंप्रीहेंसिव किस्म के, जो कि 7 और 8 सेमेस्टर में 3-3 कोर्सेज रखे जा सकते हैं। और जब ये स्टूडेंट मुकम्मल कर चुका होगा और अच्छे तरीके से, तो आप नोट कर लें कि जो CS का स्टूडेंट या डेटा साइंस का स्टूडेंट अपनी अंडरग्रेड डिग्री करके आ रहा है, ऑब्वियसली उसने तो बहुत ज्यादा फोकस किया थ्रू आउट द डिग्री, लेकिन ये मैथ का स्टूडेंट भी रीजनेबली वेल प्रिपेयर्ड है। स्टिल उसकी प्रैक्टिसिंग से मजीद पॉलिशिंग भी हो सकती है, लेकिन आप समझ लें कि ये डिफरेंट फील्ड से आने वाले एक जगह पे जमा हो जाते हैं। फाइनल रिमार्क्स, a variety of undergrad degrees might work the same or reasonably well for committed ones, not just BS in CS, IT, DS, math, etc. मीन्स अगरचे CS कहाँ IT कहाँ मैथ बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन ये मुख्तलिफ डिग्री से आने वाले लोग ये एक पॉइंट पर एक काम के लिए जमा हो सकते हैं। और ये ऑब्वियसली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के थ्रू तो बिल्कुल पॉसिबल है। और हमारे अब न्यू करिकुलम में BS मैथ के स्टूडेंट के लिए ये मुकम्मल तौर पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जैसी उसकी डिग्री कंप्लीट हो तो वो उन एक्टिविटीज या उन कामों के लिए अप्लाई करे या उन कामों का स्टार्टअप का सोचे जो कि एक CS या IT वाला भी कर सकता है या स्टैट वाला कर सकता है। और ऑब्वियसली मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कि बहुत
मॉडर्न किस्म के जॉब सेटिंग्स में या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं इन डिग्रीज की बुनियाद पे, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि बीएस मैथ का स्टूडेंट भी उनके साथ मैचिंग हो सकता है। डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, आप जिस फील्ड में भी कदम रखेंगे अपनी मैथमेटिक्स को लेके एप्लीकेशन देने के लिए, तो आपको रेलिवेंट डोमेन पे काम करना पड़ेगा, आपको उसका नॉलेज भी जरूरी होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्वियसली हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्रीहेंसिवनेस मैंने ये मेंशन कर दी कि हमारे ये कोर्स भी हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश, और ऑब्वियसली नॉट ओनली फॉर द स्पोकन बट इवन फॉर द लर्निंग पर्पसेस ये आपको हेल्प आउट करते हैं हमारे बीएस में कोर्सेज। स्टेइंग अहेड ऑफ कंपटीशन हेल्प्स क्रिएट द डिफरेंस विद ग्रिट। Knowledge is not free, you have to pay the attention. I wish you all the best in learning machine learning and data science. So thank you very much. Now we go to the question answer sessions. If you have any question, please you may ask. I'm sorry to interrupt you, but sir, we already running short of time. It's 10 minutes late. So maybe you can answer them in the question answer utility section in the next 10 minutes, please. Okay. Thank you very much. Thank you very much, madam.